formula is CRT. C is what? Moles of solute particles upon volume into RT. This isotonic, hypertonic, and hypotonic. Isotonic means when two solutions have same osmotic pressure. When they have same osmotic pressure, so pi 2 minus pi 1 equal to 0, so flow of solvent will be not there. If I separate those two solutions by semi-permeable membrane, but when one have higher osmotic pressure means what? Higher concentration. Higher osmotic pressure means what? Higher concentration. Lower osmotic pressure means lower concentration. When two solutions are separated by SPM and solution is solvent is flowing from one part to other part, तो जिससे flow कर रहा है, that is low concentration of solute particles. That is hypotonic solution, and which has higher concentration, that is hypertonic solution. Reverse osmosis. I think I told you this also. If the pressure applied is more than the osmotic pressure in the first case, then that is known as reverse osmosis. Because if you take a normal case, the solvent flows from pure liquid to solution side. But if I apply high pressure, more than osmotic pressure to solution side, the flow of solvent becomes reverse, opposite. That is reverse osmosis. Reverse osmosis means what? You have to make a pure water from a solution in which the salts are present, impurities are present, like that. So here there is a comparison. Just check it. Colligative properties RLVP, delta TB, delta TF, delta pi. If RLVP colligative property increases, the number of solute. If number of solute increases, colligative property increases. Relative lowering is increases. Lowering is increases. So vapor pressure is going to decrease. Vapor pressure is going to decrease. तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी. नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो डेल्टा टी भी बढ़ेंगे. डेल्टा टी बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. डेल्टा टीएफ बढ़ेंगे तो डिप्रेशन है, ये तो डिक्रीज होगी फ्रीजिंग पॉइंट. पाई बढ़ेगा. कंपेयर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ दिस थ्री. तो इन तीनों की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कंपेयर करें. करिए कंपेयर फटाफट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें. ठीक है. तो 0.1 मोलर का मतलब क्या हुआ? 0.1 मोलर एंड 0.5 मोलर. तो कॉन्सेंट नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स किसमें ज्यादा है? ऑल आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पे डिसोसिएशन या एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा है. B will be having higher colligative property. If B has having higher colligative property, then RLVP is more, delta TV is more, delta TF is more, pi is more. If RLVP is more, lowering is more. Vapor pressure decreases, boiling point increases, freezing point decreases, pi increases. सर हाँ सर. वो दो जब सॉल्यूशंस होंगे तब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होगा उधर से सॉल्वेंट दूसरे में जाएगा ना. हाँ, लो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन. हाँ लो सर. कॉन्सेंट्रेशन जब हम बोलते हैं किसका कॉन्सेंट्रेशन कम है? सॉल्यूट का. सॉल्यूट का तो सॉल्वेंट का क्या है? ज्यादा. ज्यादा. मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टू. ये सब तो ठीक है. अभी आते हैं हम लोग मेन पार्ट पे. ठीक है. वेंट ऑफ फैक्टर. अब ये समझाने के पहले, ये हम समझा चुके आपको पहले, थोड़ा एक डिस्कशन कर लेते हैं. हमने मान लो हमने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया बेटा ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लिया ऑफ NaCl. तो हमने कितने मोल NaCl डाले?
1 मोल, बहुत बेसिक सा थ्योरी है। 1 मोल NaCl डालो, बट NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो कंप्लीटली किस में टूट जाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में। तो कितने मोल्स ऑफ Na प्लस बनेंगे, 1 और ये भी 1 मोल बनेंगे। तो टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए, 2 2 मोल। सबसे टफ से टफ तो क्या ही है पूरे चैप्टर में, 2 मोल सॉलिड पार्टिकल्स बन गए। एनी डाउट? हम सोच रहे थे कि हमने 1 मोल ऑफ या Na पार्टिकल्स ऑफ NaCl ऐड किया, उसके कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, बट सॉल्यूशन में जाते ही NaCl किसमें स्प्लिट हो गया, Na प्लस एंड Cl माइनस में। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कितने हो गए, 2 मोल्स हो गए। क्लियर यहाँ पे? हाँ सर। तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो 1 मोल से रिलेटेड होगा या 2 मोल से रिलेटेड होगा, 2 मोल। 2 मोल से। फिर से मैं समझाऊंगा आपको एक पॉइंट जो आपको रिकॉल करने में हेल्प करेगा कि जब भी हम लिखते हैं डेल्टा, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हमने क्या लिखा, केबी इंटू एम। तो एम क्या है बताइए, हमारे अकॉर्डिंग वो मोलालिटी है, पर वो एम मोलालिटी नहीं होनी चाहिए। मोलालिटी मतलब होता है सॉल्यूट का, पर मोलालिटी ऑफ किसका होना चाहिए, सॉलिड पार्टिकल्स का होना चाहिए। जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा, जितना आपने ऐड किया, आपने क्या ऐड किया उससे कोई मैटर नहीं करता, सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है उससे मैटर। समझ में आई बात? सेम सिचुएशन अगर मैं 1 मोलर ग्लूकोज ले लेता, ग्लूकोज ले लेता, तो 1 मोलर ग्लूकोज लेने का मतलब 1 मोल ग्लूकोज इन 1 लीटर। ठीक है, ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। नहीं तो ये कितने पार्टिकल्स है, 1 मोल पार्टिकल्स में। तो किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, 1 मोल NaCl का या 1 मोल ग्लूकोज का? 1 मोल लेने से 1 मोल NaCl का, बिकॉज 1 मोल NaCl हमने डाला तो वो पानी में कितने पार्टिकल्स बन गया, 2 मोल। तो एक्चुअल पार्टिकल्स कितने हैं, लिया कितना पार्टिकल मैंने, बोलो, लिया कितना पार्टिकल, 1 मोल लिया, तो एक्चुअल कितने प्रेजेंट है सोल्यूशन में, 2 तो इसी में एक नया फॉर्मूला आता है, नया टेक्निकल टर्म आता है, आई, जो हम पढ़ा चुके हैं, 2/1 that is 2. What is 2? Actual number of solute particles, चाहे कि 10 तरह का सॉलिड पार्टिकल्स हो, NaCl, BaCl2, B3PO4 ट्वाइस, 1000 चीजें होगी, केस भी लगा लो, आयंस वहां से ले आओ, टोटल न्यूमरेटर में क्या होगा, एक्चुअल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ solute particles taken, actual number of solid particles after association or dissociation, after dissociation और एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब जुड़ भी सकते हैं, जुड़ जाएंगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए फिर से, जब मैंने 1 मोल NaCl लिया, सोचिएगा, सब समझा देंगे यहीं पे, फिर हम जाएंगे डायरेक्टली नोट पे। 1 मोल NaCl लिया और वो सिर्फ NaCl है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगी, 58.5, 23 प्लस 35.5। एनी डाउट? नो। सुनो, जब ये टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो Na प्लस और Cl माइनस के सिस्टम की मोलर मास क्या होगी, Na प्लस और Cl माइनस के मोलर मास क्या होंगे, दोनों अलग अलग पार्टिकल्स हैं, दोनों की कोई कनेक्शन नहीं है, सॉल्यूशन में दो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं। व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस मिक्सचर? डेफिनेटली इट कांट बी 58.5। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज, 1 मोल NaCl लिया तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हो गए, 2 मोल, 1 मोल तो है ही नहीं, पर दोनों का मास क्या रहेगा, अगर यहाँ पे मास पूछो और यहाँ पे मास पूछो, दोनों का मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। एनी डाउट? तो यहाँ पे मास पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे मास क्या है बताइए, 1 इंटू 58.5, दैट इज 58.5 ग्राम। तो यहाँ भी मास क्या होगा सिस्टम का,
8.5 gram. Any doubt in this? No, sir. दोनों मास तो मास will be conserved. Moles can change. Moles will change तो molar mass will change. बहुत पहले starting mole concept में करवाया था. Average molecular mass of the mixture, है ना? कुछ याद है ऐसा? Number of moles का formula? Given mass upon Molar mass. molar mass या molar mass तो molecular weight होता ही है. तो molar mass का formula क्या होता है? Mass upon number of moles. mass upon number of moles. Any doubt? No, sir. तो यहाँ भी मोल्स कितने बताओ? 2. मास कितना है? 10. यहाँ भी मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट मतलब मोलर मास बेटा. मोलर मास और मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बताओ? मास 58.5 अपॉन 2. अब रिकॉल करो ये 2 क्या है? Van't Hoff factor. Van't Hoff है ना बेटा? Van't Hoff factor. Can we say that observed molar mass, वो observed हो गया ना? Observed molar mass is theoretical molar mass upon what? I. I की वैल्यू क्या हो जाएगी? Theoretical molar mass upon observed. Any doubt in this? आई निकालूंगा मैं, अभी कुछ किया ही नहीं, बस समझाने का तरीका तो देखिए, गौर करिए. यहाँ तक कोई डाउट है? एक्चुअल sir. और No, sir. ऑब्जर्व जो हम पढ़ा चुके हैं, आपको पहले भी हम ये पढ़ा चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट. यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर. कोई डाउट नहीं. ठीक है, अब आइए थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितने मोल पे डिपेंड करेगी? 1 मोल पे. और चीज कर लेते हैं. थ्योरेटिकल डेफिनेशन ये थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1 मोल NaCl. हम तो 1 मोल NaCl डाले थे. तो ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी? जो हमने एग्जांपल्स लिया है, डेफिनेटली सॉलिड पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? वो कटायन हो, अनायन हो, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता. नंबर इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज. क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड है. इफ आई डिवाइड ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा? 2/1. और 2/1 क्या था? 1 I. तो I का फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं? N ऑब्जर्व, N थ्योरेटिकल और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट. आप चाहे तो पूरा लिखना. और ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव. तो अगर मुझे n थ्योरेटिकल बताओ, अच्छा रुकिए रुकिए, इसका एक और ले सकते हैं. I इक्वल टू n एक्चुअल लिख सकते हैं ना? एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल लिख सकते हैं. तो I का डेफिनेशन बना दो फटाक से. इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट, है ना, इन सॉल्यूशन पर पार्टिकल व्हाट. ठीक है, यही होगा ना डेफिनेशन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट. You want to make the definition. I is the value of numerator when denominator is what? 1. तो अगर मैंने n theoretical और n observe, फटाफट करते हैं. अगर 1 लिया तो n observe कितनी है? I.
अगर एन बी लिया तो एन ऑफ कितनी है, आई एन बी। तो अब मूल कॉन्सेप्ट का यूनिटरी मेथड का बेस्ट क्वेश्चन, अगर एम लिया तो कितनी है, I am. आई एम या एम आई, है ना। अगर सी लिया तो क्या होगा, सी आई। I6. अरे डाउट No, sir. किसी को भी जरा सा, बस। तो जो जो फॉर्मूला हमारे पास था, अभी हमने आई का क्वेश्चन जनरेट नहीं किया है, जो जो फॉर्मूला था हमारे पास रिलेटिव, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था बताओ, एक्स बी विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन, क्या था, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन Na बी था। plus Should be. अगर आई इन्वॉल्व करा लें तो क्या हो जाएगा, बोलो। आई, हमने एन बी सॉलिड पार्टिकल डाला हुआ क्या, एन बी डाला, INB upon Na plus INB. तो पार्टिकल कितना बन गया, आई एन बी बन गया ना। आई एन बी, एन बी तो रहा ही नहीं सॉल्यूशन में, आई एन बी पार्टिकल से सोल्यूट के, एन ए प्लस आई, ये हो गया। फिर आता है, हाँ फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन क्या बन जाता है ये, बोलो, ये भी क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा, I am the upon. तो दिस टू फॉर, बोलो, फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन। एक और रिजल्ट निकालने के लिए कहा था, सब लिखेंगे हम लोग अभी। एनबी को हम किससे मल्टीप्लाई करने थे बोले थे, एनबी को नहीं, एनबी को रहने दिया, सब मास ग्राम में है। एन इंटू क्या करने के कहे थे, एम ए थाउजेंड, एम ए अपॉन थाउजेंड, व्हाट इज इन ब्रैकेट, मोलालिटी था ना, एम क्या था, मोलालिटी। यू कैन राइट द आर इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी आल्सो। तो अगर ये लिखा मैंने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बताइए, पूरा ही लिख लेते हैं, क्या होगा फिर बताओ, ये आएगा ना, आई लग जाएगा। तो अब यहाँ पे भी देखो, आई एम क्या है, एम क्या है बताओ, एम इज द मोलालिटी। Molality. मोलालिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी, पर केजी बोल दिया तो मतलब फिक्स हो गया मास। तो आर एल यूपी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एक्चुअल क्या लिख सकते हैं, आर एल यूपी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एम। अगर आई इन्वॉल्व कर दिया तो सब सॉल्विंग टेक्निक है बेटा, डन। Yes. हमने एक के साथ खेला, सेम आप डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी को तो क्या था, केबी इंटू एम, एम क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी, बट एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, आई एम है। तो अगर आई इन्वॉल्व हो जाएगा तो केबी इंटू एम इंटू क्या हो जाएगा, आई। थर्ड, डेल्टा टी एफ इक्वल टू केबी इंटू के एफ इंटू एम। फोर्थ, पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू आई। सॉल्विंग का टाइम पे फॉर एक्वस सॉल्यूशन, अगर वो डाइल्यूट है तो मोलारिटी इक्वल टू मोलारिटी सॉल्विंग के लिए ले सकते हैं। ये सारे हो गए समझने के लिए। नेक्स्ट आता है
कैलकुलेशन ऑफ आई, पहला आता है फॉर डिसोसिएशन कर सकते हैं। डिसोसिएशन ए एन फूट के एन ए बनता है, ठीक है। अगर मैं t इक्वल टू 0 पे अगर ये c लिया तो बाद में क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, C minus C alpha ये कितना बनेगा N n C स्क्वायर। तो n थ्योरेटिकल क्या है c, और n ऑब्जर्व क्या हो जाएगा बेटा, C plus N minus 1 alpha. ठीक है? ये सब करा चुका हूँ, कराया ना। हाँ n ऑब्जर्व अपॉन n थ्योरेटिकल, पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। नाउ व्हाट इज n, एक व्हाट इज n का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, व्हाट इज n, बोलो n क्या है बताओ। number of particles formed from one वन पार्टिकल, particle. नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म फ्रॉम वन पार्टिकल। सेम पूरा डिस्कशन सब कुछ सेम पैटर्न पे हम लोग ये भी कर सकते हैं इस तरह से कि हमने ए एक्स बी वाई लिया, इसमें स्प्लिट हुआ एक्स X A Y और वाई बी माइनस एक्स। यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स प्लस वाई क्या है, रिजल्ट तो सेम ही हो जाएगी ना। अगर ये सी लिया तो सी माइनस सी अल्फा, ये क्या होगा एक्स सी अल्फा, ये क्या होगा वाई सी अल्फा, एन थेरेटिकल विल बी सी एंड ऑब्जर्व विल बी c minus c alpha, x c alpha, y c alpha, that becomes n c alpha. Yes. और I का सेम, यहाँ तो कोई डाउट, Nice. no यहाँ तो कोई भी डाउट, सब करा चुके हैं तो कुछ डाउट क्या ही होगा। तो ये I का एक्सप्रेशन हो गया। नाउ सिंस I का मेरे पास एक्सप्रेशन है, इफ अल्फा 0 है मतलब कुछ नहीं हुआ, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, नॉन इलेक्ट्रिक, कुछ नहीं हुआ, तो I की वैल्यू क्या होगी 1. 1, मतलब एक्सपेक्टेड था जो वही हुआ। अल्फा 1 है, n की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू क्या होगी, N N. तो I का रेंज क्या हो गया 1 to N 1 to N. और n क्या है, एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल फॉर्म हुए, सिंपल। जैसे x dy से कितने पार्टिकल फॉर्म हुए x प्लस y क्या है n, n अज्यूम कर लिया सॉल्विंग में। ये हमने फर्स्ट केस किया, फिर डिसोसिएशन में भी कर लिया। हाँ, तीनों केस लिख लेते हैं। इफ अल्फा इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 देन I की वैल्यू, तो ओवरऑल क्या हो गया और सेकंड और एसोसिएशन,
श्रेयस जरूरी नहीं है कि सिर्फ MI करना है। मान लो कि हम तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूट की बात कर रहे हैं ना, बट इफ आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट इन द सेम सॉल्यूशन, तो सारे सॉल्यूट का एक्चुअल नंबर निकालोगे, डिवाइड बाय क्या करोगे, क्रिटिकल नंबर निकालोगे, उसको पुट करोगे। अच्छा ये मैं कहाँ सिखाया था बताओ मुझे, अब याद आया कि आपको मैंने पढ़ाया कहाँ पे था। क्या सर? ये जो आई का फैक्टर था, मुझे अब जाके चमका मतलब याद आया कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वन फैक्टर पढ़ाया कब था, आयोनिक में था। आयोनिक में पढ़ाया था कब? हाँ मुझे अब तो अभी याद आया, वेरी गुड, बोलो। वो H2SO4 के टाइम पे। अच्छा वेरी गुड, मुझे तो पहले याद ही नहीं आ रहा था कि पढ़ाया कब था, अब मुझे जस्ट दिमाग में क्लिक किया कि मैंने पढ़ाया कब था। गुड। H2SO4, बिकॉज H2SO4 का फर्स्ट डिसोसिएशन क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, From सेकंड वीक था। यहाँ पे T इक्वल टू 0 पे C, यहाँ पे क्या होगा, C माइनस C अल्फा, यहाँ पे C अल्फा बाई N, N theoretical, C, N observed, from the I की वैल्यू मैथ्स का सिलेबस खत्म हो गया, चल रहा है 2 सर। चैप्टर बाकी। क्या कर रहे हैं, इतना पढ़ाते हैं फिर भी खत्म नहीं हुआ मैथ्स। नहीं, सम्स बहुत रहते हैं सर और कॉन्सेप्ट्स भी बहुत है। हाँ हाँ, केमिस्ट्री में ही लोग आलस बन जाते हैं, मैथ्स में सब बहुत कर रहे हैं है ना भैया? नहीं सर ऐसी कुछ बात नहीं है, केमिस्ट्री भी करते हैं हम लोग। करते ही हैं, काम बनाते हैं, अच्छा करते हैं। देखिए n पार्टिकल्स मिलकर कितने पार्टिकल बना रहे हैं बेटा, n पार्टिकल्स एसोसिएट, बोलो, वन to give पार्टिकल। to give one particle, then one particle, अब देखो वन पार्टिकल एसोसिएट तो नहीं होगा, पर मैथमेटिकली क्या होगा, वन पार्टिकल एसोसिएट टू गिव 1 by ऊपर वन पार्टिकल कितना पार्टिकल दे रहा था, एन N। पार्टिकल। तो जहां पे n है वहीं पे आप 1/n लगा दो, फॉर्मूला सेम हो जाएगा, चेक कर लो। अब अगर n 2 है तो क्या बनेगा, डायमर। अगर इफ n 2 है तो क्या बनेगा, डायमर। Dimer। n 3 है तो ट्राइमर। अब रहने दीजिए, है ना, वैल्यू लिखते हैं, तो उसी तरह से फिर से कंपैरिजन तुमने वहां पे किया था, इफ अल्फा इक्वल टू 0 तो आई की वैल्यू 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इफ अल्फा इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1/1। इफ देन आई की वैल्यू 10, तो 1/n, तो n तो पॉजिटिव नंबर है ना, इंटीजर है ना, हाँ, आई का रेंज क्या हो गया, 1/1 से 1। आई कम हो जा रही है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो फॉर एसोसिएशन एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गई, कम। n observed is less than n actual। n observed is less than n actual for dissociation beta, n observed is more than n actual। तो अगर n observed is less than n actual है, डेफिनेटली ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, मोर देन थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ भी लिख सकते हैं,
observed colligative property is less than less than theoretical colligative. तो colligative property कम हो जाएगी expected से. अच्छा colligative property कम हो गई तो molar mass क्या हो जाएगा? observed molecular weight क्या हो जाएगा? ज्यादा है ना. यहाँ पे ऑब्जर्व मोलर मास क्या हो जाएगा? लेस देन थ्योरेटिकल मोलर मास. अब ये तुरंत नहीं समझ में आया. आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. हमने मोलर मास के बारे में डिस्कस किया. डिसोसिएशन हुआ तो मोलर मास वो क्या हो गया? 58.5.2 व्हिच इज लेस देन व्हाट? theoretical. डिसोसिएशन होती है तो मोलर मास कम हो जाती है, तो एसोसिएशन होगा तो मोलर मास बढ़ जाएगा. लॉजिकल है ना. नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है? मास अपॉन मोलर मास. अब मास फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है तो नंबर ऑफ मोल्स अगर कम होते हैं तो मोलर मास क्या होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. बिकॉज मास इज फिक्स्ड. लिख दो यहाँ पे, लिखिए. मास इज कांस्टेंट. सब कई बार हो चुका है, सब एक बार होता तो मानता. नंबर ऑफ मोल्स अगर डिक्रीज हो रही है तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा. ठीक है, डन. अब जो एग्जांपल्स हैं, मतलब एग्जांपल्स कर लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है. NaCl, KCl, CH3COH when dissolved in water क्या होगा? dissociate. Dissociates to give ion more number of particles particles than expected. तो colligative प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? मोर देन थ्योरेटिकल colligative प्रॉपर्टी. लेकिन ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो दोनों का अगर मैं सेम ले लूं, 1 मोलर NaCl ले लूं और 1 मोलर CH3CH ले लूं, एक्वस लेके, किसकी colligative प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? NaCl का. और colligative प्रॉपर्टी ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर लोअरिंग ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ज्यादा होगा, प्रेशर फ्यूजन ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी. सिंपल. हियर नेक्स्ट एग्जांपल. सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड. तो लिखा है नोट्स में, पढ़ लिया सब कुछ मैंने. सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक फॉर्मिक एसिड. एसिटिक एसिड लिखना बहुत जरूरी है. जो एसिड दोनों को लिखना, सभी फॉर्मिक के साथ लिख सकते हैं. बेंजोइक एसिड associates and form dimer in non-polar solvent. Non-polar solvent like benzene, CCl4 due to intermolecular H bonding. तो N ऑब्जर्व क्या हो गया? डाइमर बन गया. थ्योरेटिकल से कब ऑब्जर्व colligative प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? थ्योरेटिकल colligative प्रॉपर्टी. कैसे बनता है वो देख लेते हैं. CH3 केमिकल बॉन्डिंग में क्या हुआ है? This is dimer of
एसिटिक एसिड, और ये क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। अच्छा, एसिटिक एसिड का मोलर मास क्या होता है? 60। अगर डाइमर बन जाएगा तो मोलर मास क्या बन जाएगा? 120। और वो तभी बनेगा जब 100% होगा, है ना? जब 100% होगा तभी ना 120 होगा। सारे मॉलिक्यूल डाइमर बना लिए तो अल्फा क्या हो गई? 1 हो गई ना। एनी डाउट? बोलो। सर अल्फा 1 होता है कि नहीं होता है? 1 हो सकता है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट। अगर अल्फा मान लो 1 हो गया, अल्फा 1 हो गया अगर, तो अल्फा 1 होने से हाँ लिखा हुआ है। अल्फा 1 हो गया अगर, तो आई की वैल्यू 1/n हो गई। अगर डाइमर है तो 1/2 हो गया, है कि नहीं? बताओ। हाँ सर। नहीं, मैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पूछ रहा था। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं, उसी को तो समझा रहा हूँ, हाँ हाँ। वही तो सेक्शन समझा रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरह से बिहेव कर सकता है, डिसोसिएशन भी दिखा सकता है और एसोसिएशन भी दिखा सकता है। जब एसोसिएशन दिखाएगा तो मोलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, है ना? बोलो। हाँ सर। एंड हाउ ऑब्जर्व molecular weight is less than theoretical molecular weight. Observe molecular weight is more than theoretical molecular weight. तो अल्फा 1 कर दो, तो अल्फा 1 होगा तो आई इक्वल टू 1/n हो गया, 1/2 हो गया कार्बोक्सिलिक के लिए। इन दिस केस n इक्वल टू क्या है? इसमें रिएक्शन कैसे लिखोगे? ऐसा लिखा जाएगा, 2CH3COH will give क्लियर है सबको? हाँ एक इन्फो दे देता हूँ, फिर सॉल्विंग पे आ जाते हैं। बुकलेट भी खत्म हो जाएगी हमारी 15 मिनट में। 15 मिनट तो नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा हो गया। ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड, that is RBC, is isotonic with is isotonic with 0.91 percentage W upon B aqueous NaCl solution। ठीक है, मुझे इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी बताइए। क्या करोगे बताओ? 0.9% W upon B है। आपको वो कन्वर्जन याद है? स्ट्रेंथ क्या होती है? 10 इंटू परसेंटेज W upon B। और मोलैरिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। याद है ना? स्ट्रेंथ अपॉन, बोलो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। डेफिनेटली। हमारा क्या डेटा दिया हुआ था? 0.91 डब्ल्यू अपॉन बी। तो स्ट्रेंथ क्या होगा? 0.91 इंटू 10। मोलैरिटी क्या होगी? अपॉन 58.5। क्या अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रहा है? कैलकुलेटर में चेक करें। 0.91 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1/6। 156।
0.155 भी लिखूं अगर, तो इसमें पार्टिकल्स कितने हैं? ये होगा ना, इनिशियल का आई क्या है? 2। सॉल्ट्स का आई 1 ले लीजिएगा अगर मुझ मेंशन नहीं है तो। ये समझ में आया कि नहीं? 0.31 मोलर पार्टिकल्स गैस, हाँ 1 initial will give 2 particles, double हो जाएगा। Now, when RBC is in contact with solution whose concentration is lesser than 0.1% W upon V NaCl, water flows into the cell, तो RBC के सेल में, and RBC swells। क्यों बताओ? सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो जो सॉल्यूशन हमने लिया, सॉल्यूशन लिया हमने, उसको कांटेक्ट में लाया हमने आरबीसी, तो आरबीसी का जो लेयर है ना वही एचपीएम का बिहेव करेगा, तो आरबीसी स्वेल हो जाएगी, तो पानी जाएगा उसमें। दिस फेनोमेनन इज नोन एज, बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव है, कॉल्ड हेमोलाइसिस। इट occurs with what kind of solution? Hypotonic solution with respect to RBC। क्या हम ऐसा ही स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं? एक और करते ही हैं हम लोग जनरली। बस चेंजेस क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पे क्या होगा? मोर देन। यहाँ पे क्या होगा? shrinks, हाँ, क्लोज आउट ऑफ द सेल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रिंक। इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? yes, और एक लास्ट सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, जो फिर से पढ़ना उड़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा देख लीजिए, कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट है। मतलब साइंटिस्ट को अपना नाम रोशन करना है, चलिए। वांट ऑफ लॉज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। एनसीईआरटी की थ्योरी एक बार गौर करिएगा इस टॉपिक का। पहला है वांट ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आपको पता ही है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वॉल्यूम। यहाँ पे क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर is inversely proportional to volume at
क्या होगा? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ व्हाट? सॉल्यूट, है ना? एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट है। Osmotic pressure is inversely proportional to volume of solution. What is V here? What is pi here? Osmotic pressure. And what is V? Volume of solution. ये जबरदस्ती का लॉ है, कुछ भी लॉ में दम नहीं। कुछ भी करके लॉ बना दिया। नेक्स्ट कौन सा लॉ होगा? चार्ल्स लॉ। इसमें पाई प्रोपोर्शनल टू टी कर दिया। यहाँ पे क्या होगा? एट फॉर अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन सी है ना, सी कांस्टेंट है। थर्ड लॉ एवोगाड्रोस लॉ, पाई प्रोपोर्शनल टू एनबी, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तीनों को लॉ को मिला दिया तो क्या बन गया इक्वेशन हमारा? पाई इक्वल टू एनबी अपॉन वी इंटू आरटी, दैट इज आरटी। अब देखना, थोड़ा गौर करना। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बना सकते हैं? सॉल्यूशन वन एक लास्ट बस डिस्कस करता हूँ। एक सॉल्यूशन वन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन है। एक सॉल्यूशन वन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई टू है। इसकी वॉल्यूम वी वन, इसकी वॉल्यूम वी टू है। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो जो नया सॉल्यूशन आया मिक्स कर दिया तो न्यू सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? और न्यू pi 1 v1 plus pi 2 v2 upon ये तो अब ये मैथ्स सॉल्विंग क्वेश्चन हो गया। तो कोई थ्योरी नहीं है, बस थ्योरेटिकली आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर निकाल सकते हैं वैसे। तो ऑल द वैरायटीज ऑफ जो डाइल्यूशन था वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। एक काम करो सर, जो वेंटो वाला पार्ट है ना वो लिख लीजिए एक बार। कुछ है नहीं वैसे, फॉर्मूला लिखो तब भी चलेगा, है कि नहीं? तो फॉर्मूला लिख लेंगे तब भी आगे चलेगा, बिकॉज हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो कैलकुलेशन ऑफ आई जो रिजल्ट है यू कैन राइट दैट। हाँ, फ्रॉम दिस you can write the formula of I alpha also na, I minus 1 upon n minus n minus 1। और एक और चीज और लिखा है, क्या हमने मॉलिक्यूलर वेट को लिखा था? ऑब्जर्व, हाँ लिखा था ना, ये भी लिखो। मॉलिक्यूलर वेट, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर। फिजिकल में कोशिश करना बुकलेट खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी स्टार्ट करिएगा। कोई बर्डन नहीं है, आराम से करिए, जल्दबाजी करके नहीं चाहिए। बुकलेट जल्दबाजी चाहिए, तो उसके बाद आप आराम से कंप्लीट करिए।
तो आई को ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट इज व्हाट, theoretical molecular weight upon I. तो आप क्या करो, I का जो रिजल्ट निकाला हमने, वन प्लस एन माइनस वन अल्फा और दूसरा वन प्लस वन बाई एन माइनस वन अल्फा, दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए, क्विकली बुक में निपटाते हैं। हो गया सर। अब फास्ट करना चाहिए, जितना फास्ट हो सकता है। डेविएशन क्वालिटेटिव, हाँ हाँ इसी को डेविएशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, समझ लो। आई वाला थ्योरेटिकली कुछ और है, मिला कुछ और मुझे, वही क्या हो गया, डेविएशन हो गया ना। तो डेविएशन के लिए हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को हम देखें, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, थ्योरेटिकल आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनटू आई। तो थ्योरेटिकली मैंने ये सोचा था, मिला मुझे कुछ और, तो जो मिला कुछ और वो कैसे निकला, बाय मल्टीप्लाइंग व्हाट, आई। तो आई विल बी डिसाइडिंग दी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो ये डेविएशन लिखा है, ये 53 से लेके अपने बुकलेट में ही करिए, 53 से लेके 62 तक 5 मिनट में खत्म करिए, 10 मिनट मैक्सिमम। फर्स्ट क्वेश्चन, K4 एफिशिएंसीज किसमें स्प्लिट होगा, 4K प्लस और 4K प्लस और एफिशिएंसी माइनस 4 माइनस। कितने पार्टिकल होंगे मैक्सिमम, 5। तो कुछ मेंशन तो है नहीं, तो आई की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 5, बिकॉज अल्फा के बारे में मेंशन नहीं है, सॉल्ट के बारे में। तो यहाँ कितने पार्टिकल बनेंगे, 5, 5 इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, तो आंसर क्या हो गया, ए 2.74। 2.74 1 से ज्यादा है, मतलब डिसोसिएशन की बात कर रहा है, इसका कोई काम नहीं, कोई काम है ना।
हाँ I की वैल्यू क्या है 1 plus n minus 1 alpha. For this salt, what is the value of n? 3. 3 I 2.74. 1 plus 3 minus 1 into alpha. तो alpha की वैल्यू 1.74 upon 2. तो 0.87 आएगा. परसेंटेज में क्या हो जाएगी into 100. Solid X when dissolved in a solvent to form pentamer. मतलब I की वैल्यू क्या है 1/5 1/5. एसोसिएशन की बात कर रहा है. फिर से सेम क्वेश्चन बेटा. 56 is similar to 54. For which of the following solute the want of factor is not greater than 1? D. अब इस नोट्स में अगर आप देखें यहाँ पे मेंशन्ड है आई की वैल्यू यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज ग्लाइकोल फ्रक्टोज. इसी के आसपास सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं, यही पूछते हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई की वैल्यू 1 ले लेंगे. NaCl CaCl2 Na3PO4 K3 K4 HCl. कुछ मेंशन नहीं है तो क्या लेंगे अल्फा 1 ले लेंगे इन सब के लिए. वही ऐसा नहीं सॉल्ट के लिए भी अल्फा निकालने के लिए बोल सकते हैं. MgO3 ट्वाइस का तो बोला ही उन्होंने. पर मेंशन नहीं है तो अल्फा 1 लेंगे इन सब का. उसमें सर यूरिया का 1 दिया है. सही है ना यूरिया का 1. ठीक है. नहीं अभी हमने लेस देन 1 किया ना. एक नहीं समझा सर. वो कुछ और नॉट पूछा होगा. ग्रेटर देन 1 था. हाँ नॉट ग्रेटर देन 58. Why is the molar mass determined by measuring property in case of some sort of abnormal due to association or dissociation of molecule? 59. अब आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे KB इंटू M इंटू आई लिखा करिए और M इंटू आई भी मत लिखा करिए. M ऑब्जर्व लिखा करिए, बेटर होगा. MI जो मेथड है बेटा दिस इज सिंपल क्वेश्चन. व्हाई? सॉल्यूट एक ही है तो M इंटू आई उस सॉल्यूट का इंटू आई कर देंगे. उस सॉल्यूट का इंटू आई कर देंगे ना. अगर बहुत सारे सॉल्यूट हैं तो वहां पे क्या करना पड़ेगा M1 I1 M2 I2 सब करना पड़ेगा ना. हर एक सॉल्यूट की मोलैलिटी निकालोगे ना. बोलो. हाँ सर. तो उससे भी बेटर अगर मैं बोलूं तो डेल्टा TB इक्वल टू KP इंटू M ऑब्जर्व कर दो. काम ही खत्म हो गई है कि नहीं बताओ. M ऑब्जर्व तो M ऑब्जर्व क्या होगा एक्चुअल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट उसकी मोलैलिटी अपॉन इक्वल टू क्या होगा टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सारे सॉलिड पार्टिकल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केज. 59 में सिंपली MgCl2 बोला कुछ मेंशन नहीं किया तो आई क्या ले लेंगे 3 बिकॉज इसके लिए n की वैल्यू क्या है 3 है. सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा. 60. हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बोला है. हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बोला है तो डिप्रेशन कम है. डिप्रेशन कम है तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कम है. तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स किसमें होगा कम. 61. What amount of CaCl2 is dissolved in 2 liters so that its osmotic pressure is 0.5 atm. सब फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है वो दम नहीं. एक क्वेश्चन 0.5 इक्वल टू क्या होगा आई पता ही है. सी निकाल सकते हैं. इस ऑप्शन से इसमें आई पता है आर पता है टी पता है सब पता है सी निकल जाएगा. और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हाँ सी मोलैलिटी हो गई. तो मास ऑफ क्या होगा मास ऑफ CaCl2 अपॉन molecular weight of CaCl2 upon volume of solution in liter. ml मिले 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. 62 का
सी वाला रॉन्ग। Clear? The correct order of osmotic pressure for 0.2 molar. सभी 0.2 मोलर है। CaCl2 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ भी n=2 है, बट इसमें अल्फा क्या है? लेस देन 1, और NaCl में अल्फा क्या है? 1। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर दिस, ये करेक्ट है ना? नॉट करेक्ट। ऑर्डर नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्डर में नहीं है। बी वाला क्या बोल करेक्ट रहे है, ए वाला करेक्ट है और डी वाला करेक्ट है, सी वाला रॉन्ग है, तो हो? वो अच्छा हाँ, वैसा बोलो, ठीक है ठीक है। तो एक चीज और बताता हूँ, टाइम बुकलेट कर लीजिएगा। गौर करना, बड़ा टफ टफ सेक्शन। एक ही क्वेश्चन टफ बोल सकते हैं आप। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है? के बी इंटू एम, और आई मल्टीप्लाई कर सकते हैं। के बी कॉन्स्टेंट, एम क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, यही है ना? बी क्या है? सॉल्यूट, और ए क्या है? जब आप बॉयल करोगे, ड्यूरिंग बॉइलिंग, क्या कांस्टेंट रहेगा? बिकॉज बी क्या है? नॉन वोलेटाइल। और सॉल्वेंट क्या है? volatile, तो जब आप बॉयल करोगे तो सॉल्यूट तो उड़ेगा नहीं, क्या कांस्टेंट रहेगा? एनबी कांस्टेंट रहेगा। व्हाट विल चेंज? विल डिक्रीज विद टाइम। बोलो। yes, तो डब्ल्यू डिक्रीज होगा तो एम क्या होगा? इंक्रीज। मतलब एज टाइम passes, amount of solvent will decrease, but delta TB will be remaining what? Also increasing. So delta TB will increase. तो जैसे जैसे सॉल्यूशन का पानी उड़ता जाएगा या लिक्विड उड़ता जाएगा, वैसे वैसे मोलालिटी बढ़ती जाएगी। मोलालिटी बढ़ेगी तो डेल्टा टीबी भी क्या होगा? बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज। वो एम बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। सेम लॉजिक से सब कुछ सेम लिख सकते हैं। देखिए, ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, एनबी इज कांस्टेंट, तो डब्ल्यू विल डिक्रीज। तो पानी ही बनेगा ना, आइस, लिक्विड बनेगा आइस। एम विल इंक्रीज, डेल्टा टी एफ विल इंक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट विल डिक्रीज। तो डेल्टा टी एफ था क्या? डिप्रेशन था, एलिवेशन नहीं था। तो ये दोनों क्वेश्चन यूज कैसे होते हैं बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन का अपना डेल्टा टीबी होगा, और उसको मैंने ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल कर दिया। व्हाट विल हैपन टू द सॉल्यूशन?
कॉन्सेंट्रेट बन जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो आपसे पूछ लेंगे कि वो कितना वाटर वेपोराइज हो गया। सिमिलरली हमने सॉलिडिफाई कर दिया, पूछेंगे कितना वाटर सॉलिडिफाई हो गया, कितना आइस में कन्वर्ट हो गया। अब इसका एक बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है, क्वेश्चन में आपको सुनिएगा, ये देंगे, सॉरी ये नहीं, एन बी दे देंगे, डब्ल्यू ए दे देंगे, के बी दे देंगे, डेल्टा टी भी दे देंगे। तो आपको लगेगा निकालना क्या, तो डब्ल्यू ए शुड नॉट बी गिवन, जो दिया भी रहेगा ना वो नहीं गिवन है, वो जो गिवन है तो यूज नहीं करना है, उसको निकालना है, फिर गिवन डेटा से कंपेयर करनी है, वो हमेशा कम आएगा। तो आप कैलकुलेट करोगे तो जो गिवन से कम आएगा, गिवन से कम क्यों आएगा, क्योंकि जो गिवन था वो तो वेपोराइज हो गया, जो रिमेनिंग पार्ट है वो आएगा आपकी सॉल्विंग से, जो डिफरेंस निकालोगे दैट अमाउंट विल बी व्हाट, वेपोराइज्ड। सिमिलरली हम किसी सॉल्यूशन को प्रिपेयर किए हैं, समथिंग इज गिवन टू यू, तो उसको हायर लोअर टेम्परेचर पे हम फ्रीज करते हैं, तो लोअर टेम्परेचर फ्रीज करेंगे, उसके कोरिस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तो लोअर टेम्परेचर के कोरिस्पॉन्डिंग डेल्टा टी एफ के कोरिस्पॉन्डिंग हम डब्ल्यू ए निकालेंगे फिर से, और गिवन डब्ल्यू ए से कंपेयर करेंगे, वो डेफिनेटली कम आएगा। तो जो गिवन डब्ल्यू है माइनस कैलकुलेटेड डब्ल्यू ए विल बी मास ऑफ आइस फॉर्म। So this is the best numerical you can say in case of solutions. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक नॉर्मल सॉल्यूशन का अपना डेल्टा टीएफ होगा, और अगर मैं लोअर टेम्परेचर पे उसको सॉलिडिफाई करूँ, उसकी रिस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कुछ और होगी, मोलालिटी कुछ और होगी, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डब्ल्यू ए निकाल लें, तो गिवन डब्ल्यू ए से कैलकुलेटेड डब्ल्यू ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मास ऑफ आइस फॉर्म निकल जाएगा। क्लियर है? कल की क्लास में जो थोड़ा बहुत डाउट होगा एक्सरसाइज 1 कर लीजिएगा। अच्छा, सॉइल स्टेट किया आप लोगों ने? थोड़ा सॉलिड स्टेट किया किया? सर। वन नहीं हुआ है। तो इस वीक सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन कंप्लीट करिए, इस हाँ, वीक आप सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन कंप्लीट करिए, देख लेंगे कब डिस्कशन करना होगा, फ्राइडे सैटरडे को जब, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। और पैरेलली क्या टॉपिक चल रहा है अभी? कोऑर्डिनेशन चल रहा है। हाँ सर। कोऑर्डिनेशन में क्या चल रहा है? नेमिंग हो गया? नेमिंग बोलो बोलो, फिर नेमिंग हो गया, और बोलो क्या क्या हो गया कोऑर्डिनेशन में? नेमिंग हुआ है सर। वीक में कितनी क्लास हो रही है? 2 क्लास हो रही है ना? वो बहुत 3 कंफ्यूजन हो गया था, क्या क्या? एक ही क्लास हुई थी। अच्छा चलिए ठीक है, सर आराम से, आप कोई दिक्कत। कोऑर्डिनेशन के नोट्स भेज सकते हैं क्या? श्रेयस तुम्हें मैंने रिप्लाई किया था, तुमने क्लास में ठीक है। पूछ के गलती की, तुमने कुछ रिप्लाई किया ना? हाँ हाँ खत्म होने दो, तुम्हें रिप्लाई, तुम्हें मैसेज के रिप्लाई किया था, देखो मैसेज पढ़ो, तुमने मुझे कोई रिप्लाई बैक नहीं किया, और फिर से तुमने वही चीज क्लास में पूछी है, देख लीजिए आप। है कि नहीं बताओ? हाँ सर। एक क्लास पढ़ लो, पूरा क्लास में समझ लो, अब तुमने पूछ ही लिया क्लास में तो क्लास में पढ़ लो, क्योंकि मैं नोट्स शेयर कर दूंगा तो फिर क्लास के साथ चल नहीं पाओगे, ठीक है? वो नोट बहुत ज्यादा डिटेल्स में, बहुत ज्यादा डिटेल्स में, और वो भी क्यों बन पाया था, क्योंकि मैंने किसी को बिना बोले क्लास लेना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए शेड्यूल में नहीं था, ठीक है ना? परेशान मत होइए, क्लास में वॉट जो कंटेंट डिस्कस हो रही है उसको कंप्लीट करिए, जैसे नेमिंग हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, एग्जांपल्स हो जाएंगे, सिर्फ अभी नेमिंग ही हुआ होगा शायद, वो होने दीजिए कंप्लीट। मैं जानता हूँ तुम्हारा रश क्या है, रश तुम्हारा केवीपीआई है ना? हाँ
अच्छा अभी रिप्लाई किया तुमने, ओके। केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए अलग से प्रैक्टिस करना है? कोई खास नहीं पड़ता है, फर्स्ट लेवल तो बड़ा आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। जेई वाले ही अगर ढंग से आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा, समझ गए थे? जेई वाला ही ढंग से करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ऑर्गेनिक आपका अमाइंस से निपट गया है ना, सुन रहे हो? हाँ हेलो, हाँ सर। तो पी बहादुर शेयर्ड है आपके पास बुक ऑलरेडी? बुक शेयर्ड है पी बहादुर का? क्लासरूम में बुक शेयर्ड होगा, नहीं होगा तो आई विल शेयर इट। हाँ है सर। उसमें है सर। हाँ उसमें शायद 19 या 20th चैप्टर है, वो सीरीज खत्म कर डालना। क्यों कह रहा हूँ, उसमें मिक्स क्वेश्चन है सिर्फ, मैं सबको फोर्स नहीं करूंगा, अभी उसको अभी नहीं सबको करने के लिए बोलूंगा। ओके मैं देखता हूँ। हाँ चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। 19 एंड 20 क्वालिटेटिव एस्टिमेशंस है। देखो सब समझिएगा ध्यान से, व्हाई दिस बुक इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। जनरली न्यूमेरिकल केमिस्ट्री ही है पी बहादुर आपका, और 2-3 चैप्टर में बढ़िया दिया है, 18, 19, 20। 19 में ऑर्गेनिक के मिक्स प्रॉब्लम्स हैं। मिक्स का मतलब सारे चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, रोड मैप क्वेश्चंस है। रोड मैप का मतलब क्या हुआ, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ई एफ जी लाइक दैट। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सफिशिएंट है। 20th में सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस आपने क्लास में पढ़ लिया, सारे रिएक्शन याद होंगे नहीं। इसके इस बुक में स्टार्टिंग में शॉर्ट थ्योरी भी है सॉल्ट एनालिसिस की, जो प्यारी है, प्यारा थ्योरी है। उसका क्वेश्चंस कर डालेंगे। देखो मैंने सिंपल सर्च क्या किया था, सारे क्वेश्चन ही याद कर लिए थे। याद का मतलब पढ़ के 2-3 बार डन कर लिया। यू विल फाइंड छोटा छोटा जो सेगमेंट है, जैसे एक रिएक्शन है जो हिंट देता है कि ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करें, सभी रोड मैप क्वेश्चन है। 19 एंड 20 इट्स वेरी गुड चैप्टर फॉर ऑर्गेनिक एज वेल एज सॉल्ट एनालिसिस। 19 हो गया ऑर्गेनिक के लिए, 20 हो गया सॉल्ट एनालिसिस के लिए। क्वेश्चंस आर वेरी गुड, मतलब वेरी गुड। क्वेश्चन ही थ्योरी सिखा देगा आपको, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन हर जगह नहीं मिलते अच्छे से, और यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भी नहीं मिलेगी, आपने रिजॉल्व करनी है। एंड डोंट चेक द सॉल्यूशन, वर्क ऑन इट, फाइट करिए। समझ गए? सुन रहे हैं? हाँ सर। दोनों चैप्टर में से स्टार्टिंग में थोड़ी बेसिक थ्योरी है, शॉर्ट थ्योरी है। दोनों आप चेक करिए, 19 एंड 20 टाइम निकाल के करिए। फिर अभी हम सबको फोर्स नहीं करने के लिए करते, अभी आप ऑर्गेनिक का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए, देन 19 नंबर करिएगा। बिल्कुल हर बच्चे की डीलिंग अलग अलग हो, कोई रश नहीं करनी है। तो तुम लोग को लगे तो तुम लोग कर डालना, ठीक है ना? ठीक है ना, कर लेंगे ना? हाँ सर। 19 एंड 20 पहले कंप्लीट करने की कोशिश करिए। आपको लगेगा कि क्वेश्चन का रिएक्शन याद नहीं है तो रेफर कर लो। इनऑर्गेनिक कैन बी लर्न फ्रॉम द क्वेश्चंस आल्सो। अभी Na2CO3 को हीट करने से नहीं मिलता है, हम याद करके बैठे हैं या क्वेश्चन के थ्रू सीख लें इसको, एक ही बात है। चलिए ठीक है बेटा।